शुरू हो गया कोई बोल नहीं रहा आवाज A नहीं है very warm good morning to respected Director Sir, IIC President, all faculty members and students present here. I, Simran Suri, Student Coordinator of Institute's Innovation Council, would like to welcome you all to be the part of this webinar, whose theme is Intellectual Property Rights, that is IPR. Today's webinar is going to be full of innovative ideas and how to convert that idea into patent. And to make this happen, we are having a very influential personality among us, Professor Dr. B.K. Sarkar, who is a project director. We all welcome you, sir. Now, I would like to request our IIC President Keshav sir to please take over. Thank you, Simran. Good morning to all faculties, my dear student, respected director, sir, and our eminent speaker of the day, Professor Dr. P.K. Sarkar, sir, with us for today's session. Welcome you, sir. As we are a part of the Institute Innovation Cell, KCCITM Greater Noida, you know, IIC, MHRD Innovation Cell, and AICT designed various activities under different thrust areas like innovation, IPR, entrepreneurship, which we believe relevant for our students as well as for our faculty to attain, participate, get knowledge, and some learning. Till now, we covered two ISC activities. Now, today, our e-session is on identify intellectual property component at the early stage of the innovation. And in next coming week, we plan two more sessions. So stay with us, enjoy the session. And now I request Director Sir kindly introduce our speaker of the day, Sir. thank you Keshav a very good morning to all of you and welcome to the institution's innovation council third activity. KCC Institute of Technology and Management has been actively involved in nurturing and developing the overall persona of its students and will continue to enhance the potential of its young mind through industry and academic exposure to foray into the world as an innovative workforce. And today I am honored to introduce the guest speaker for the day, Professor B.K. Shakasa. Professor B.K. Shakasa is an eminent academician and researcher with more than 18 years of experience who has made immense contribution in various engineering domains. Professor Shakasa has done his postdoctorate from Singapore, PhD and MTech in computer science from IIT BHU, and BTech in computer science from RSU Raipur. Sir has 351 national and international patents. He has also published 14 books internationally and 10 ebooks. He has also published 41 international and 32 national research papers. He has completed projects worth 2400 crore on national and international level and is currently doing a project under the Japan government. Professor Sakar is also the founder of GEH Research LLP and ADVIGA Innovation LLP. He is a member of several societies like JCET, IJCET, ISTE, SMU, and Global R&D. He has set up various center of excellence in different engineering institutions like Sir has set up IBM, Sony India, ITC, TCS, Microsoft, etc., SAP ERP, Oracle Academy, PLC and SCADA automation training, hydraulics and pneumatics, robotics and CNC programming center, ETAP training center, etc. Sir is also associated with AICT for NBA and UGC for accreditation, compliance, and documentation.
It will take a whole session to discuss his achievements and contribution. So without taking any more time, I would like to request Professor Sarkar sir to please start the session. Thank you, sir, and welcome to the KCC Institute, sir. Thank you. Thank you, sir. Good morning, dear all. Kindly share my PPT in front page. Who can share the PPT? Yes, sir. Just a second. Yeah. Raghavendra. Front page, first page. You go to the first page, right? Good morning, dear all. I think सभी लोग इंजीनियरिंग डोमेन से रिलेटेड यहाँ पे सेमिनार अटेंड कर रहे हैं. सभी लोग को अपनी इंजीनियरिंग का मीनिंग पता है कि हम इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं. इस पे हमें डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि इंजीनियरिंग का मीनिंग यही होता है कि आप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंजीनियरिंग यू कैन प्रोवाइड द जॉब, नॉट सर्च जॉब. आप जॉब सर्च ना करें, लोगों को जॉब प्रोवाइड करें. ये इनहेंसमेंट, ये टेक्नोलॉजी, ये स्किल आपके अंदर आती है आफ्टर 4 ईयर. ऐसा स्किल्ड है जो हजारों लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं. आप more than 1, more than 2, more than 3 स्टार्टअप, अदर इंडस्ट्री ओपन करते हैं, वेरियस प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हैं. ये जो जर्नी है इंजीनियरिंग का, ये स्टार्ट होता है रिसर्च और इनोवेशन से. अगर आपका ब्रेन, आपका स्किल रिसर्च ओरिएंटेड है, देन फिर डेफिनेटली आपका जो ड्रीम है वो अचीव होता है डे बाय डे, टाइम बाय टाइम, और उसको कंप्लीट करते हैं. तो हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो रिसर्च इनोवेशन में एक वर्ड आता है पेटेंट. ये सिर्फ आप नाम से अवेयर होंगे. और पेटेंट के बारे में अगर मैं आपको डिस्कस करूं तो पेटेंट एक वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि इंडिविजुअल, कोई टीचर्स, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट पेटेंट की पूरी प्रोसेस को करना चाहे तो उसको प्रॉब्लम्स आएगी. तो कहीं ना कहीं पेटेंट एक्सपर्ट. Excuse me, sir. या Sir, आवाज नहीं आ रही? Yes, yes, audible, sir. Can you audio video, sir? Video, sir. Sir, camera is off. या ऑडिबल? Sir, you are audible, but your video is not visible. Actually, your camera is off, I think so. Just a minute. Yeah, on. Is visible? Yes. या तो राइट नाउ स्टार्ट करते हैं. आप सभी लोगों को फर्स्ट वर्ड आया है पेटेंट. यह भी डिस्कस किए हैं कि पेटेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इंडिविजुअली ही नहीं कर सकते. तो हम सभी टीचर्स, स्टूडेंट पहले ये जानने का आज प्रयास करें कि पेटेंट हमारे लिए या रिसर्चर्स के लिए या स्टूडेंट के लिए या फिर प्रोफेसर्स या साइंटिस्ट के लिए क्यों जरूरी है. ये समझना जरूरी है. देन फिर हम आगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे. जैसा कि आप सभी लोगों को ये बात पता है कि पेटेंट ये वो कॉन्सेप्ट है जो सोसाइटी की किसी भी प्रॉब्लम्स का सलूशन देता है एक इनोवेटिव तरीके से. वो जो इनोवेटिव वे होता है, आपका जो सलूशन का तरीका होता है, वो पूरे विश्व में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, आपका ही यूनिक होना चाहिए. या फिर सोसाइटी की किसी प्रॉब्लम्स का सलूशन आप देते हैं, वो जो सलूशन का प्रोसेस है, सलूशन का मेथड है, सलूशन का एल्गोरिथम है, सलूशन जो इम्प्लीमेंट होता है वो इनोवेटिव होना चाहिए. देन फिर ये आपका कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, मेथड पेटेंट में कन्वर्ट होता है. तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हम ही लोग को या हम टीचर्स लोगों को या स्टूडेंट लोगों को पेटेंट क्यों जरूरी है. इसका पहले मैं आपको जवाब दूंगा, देन फिर आगे सेशन प्रोसीड करेंगे. जैसा कि आप सभी लोग 4 ईयर की इंजीनियरिंग करते हैं, 4 साल की इंजीनियरिंग बाद एक आपको डिग्री और सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके आधार पे हम लोग इंडस्ट्री में अप्लाई करते हैं जॉब के लिए. और उसके आधार पे आपको जो भी आपकी एलिजिबल क्राइटेरिया होती है, जो स्किल्ड होता है, उसके हिसाब से आपको जॉब मिलता है. और इंडस्ट्री किसी न किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करती है, वहां पे आप जाके अपने
स्किल को, नॉलेज को इनहेंस करते हैं, देखते हैं और कंपनी में काम करते हैं। इसी तरह से ये पेटेंट है, 4 साल के जर्निंग में आपको कोई ना कोई इनोवेटिव आइडिया सोचना है, और वो इनोवेटिव आइडिया अगर आपके नाम से पेटेंटेड है तो उस कॉन्सेप्ट को किसी इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट होके आप प्रोडक्शन के लिए अलाउ करते हैं। मींस कि जो आपका कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट इंडस्ट्री में डिजाइन और डेवलप किया जाता है और उसको मार्केट में सेल किया जाता है। पूरा प्रोसेस इंडस्ट्री करता है, बट कॉन्सेप्ट आपका है। तो इंडस्ट्री के साथ जब आपका एसोसिएशन होता है तो इंडस्ट्री आपको एक लमसम रॉयल्टी देती है या फिर फंड रिलीज करती है पर ईयर, पर मंथ। तो ये एक आपका कह सकते हैं इनोवेशन का लाइफ टाइम अप्रॉक्स 20 ईयर तक का इनपुट होता है, कि जैसे आप कंपनी में काम करते हैं तो सैलरी मिलता है, इसी तरह से आपका रिसर्च और इनोवेशन को इंडस्ट्री मार्केट में प्रमोट करता है, तो उसके बदले वो इंडस्ट्री, वो ऑर्गेनाइजेशन आपको पर मंथ, पर ईयर लुक लाइक ए सैलरी जैसा रॉयल्टी प्रोवाइड करता है। तो ये एक पहली एडवांटेज आपको आती है कि घर पे बैठे बैठे अगर आपने कोई इनोवेशन कर दिया तो आपको हर मंथ, हर ईयर आपको एक पैसा लमसम मिलता रहेगा। वो अमाउंट डिपेंड करता है कि क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग और सेटिंग हुई है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कितना परसेंटेज पे। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट हो गया कि आपके पास अगर पेटेंटेड कॉन्सेप्ट है, आपका खुद का पेटेंट है, तो आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, या आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके रिलेटिव में कोई कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपका जो पेटेंटेड कॉन्सेप्ट उसके साथ मिलके स्टार्टअप प्रोडक्शन, अंडर स्टार्टअप आप प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं, बिजनेस अपना शुरू कर सकते हैं। गवर्नमेंट से लाइसेंस ऑलरेडी आपके पास पेटेंट है, मींस मिला हुआ है। तो ये दूसरा आपके लिए एडवांटेज होता है कि अगर आपके पास इनोवेटिव आइडिया का पेटेंट है तो आप अपना स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन करके प्रोडक्शन शुरू करते हैं नेशनल लेवल पे। सेकेंड एडवांटेज की बात आ गई आपकी। थर्ड एडवांटेज, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें अपने जॉब में, जहां पे जॉब कर रहे हैं वहां पे प्रमोशन हो, या फिर जहां पे जॉब करो उससे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं अप्लाई करना चाह रहे हैं, या फिर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में है और ऑलरेडी प्रमोशंस की जरूरत पड़ रही है, तो ये जो पेटेंट्स है आपको इन तीनों चारों चीजों में हेल्प करता है, हाईएस्ट स्कोर प्रोवाइड करता है, ताकि आप अच्छे से अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं। प्राइवेट है तो गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई करें और आपकी एपीआई स्कोर इंक्रीज होती है, वहां पे इसका एडवांटेज है, या फिर गवर्नमेंट में है प्रमोशन के लिए अप्लाई करते हैं तो ये पेटेंट का स्कोर दिया जाता है, उसके आधार पे आपकी प्रोफाइल इंक्रीज होती है, आपके इंटरव्यू के पॉइंट इंक्रीज होते हैं, आप टोटल मेरिट लिस्ट आपकी अच्छी बनती है, जिसकी वजह से आप आगे की तरफ प्रमोट होते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, अगर आप इंडिविजुअली उस कंपोनेंट को, उस प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, आपकी डिजाइन की स्किल जो होती है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, उसके वजह से आपको डिफरेंट नए नए डोमेन में इनोवेटिव आइडिया आपके ब्रेन में आने लगते हैं। एक या दो जब पेटेंट के कंपोनेंट आप डिजाइन करने लगते हैं, उसको डेवलप करते हैं, रियल टाइम उसके प्रोटोटाइप को टेस्ट करते हैं, देन फिर आपके सोसाइटी को देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। जब कभी भी सोसाइटी में मूव करते हैं, इंडस्ट्री में विजिट के लिए जाते हैं, तो हर जगह आपको कमी नजर आती है कि इस कमी को ऐसे रेक्टिफाई करेंगे, इस कमी को ऐसे रेक्टिफाई करेंगे। वहीं जो डिसएडवांटेज है, वो कॉन्सेप्ट जो अप्लाई करते हैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए वो पेटेंटेड कॉन्सेप्ट होता है। तो ये बाय डिफॉल्ट आपके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपका पेटेंट फाइनली, अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, जॉब में यूज नहीं करना चाहते, स्टार्टअप नहीं ओपन करना चाहते हैं, तो फाइनली अपने पेटेंट को 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी इंडस्ट्री को आप सेल कर सकते हैं। उसके बदले वो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट देते हैं। अभी जो इंडिया में चल रहा है पेटेंट सेलिंग का कॉन्सेप्ट, तो स्टार्टिंग जो वैल्यू आती है 1C और मैक्सिमम जो हो जाती है 2C, 3C, 4C, 1 करोड़ से 5 करोड़ के आसपास आपके पेटेंट के कॉन्सेप्ट को सेल किया जाता है। सेल करते हैं, आप लमसम पैसा लेते हैं। तो लॉट ऑफ पेटेंट के एडवांटेज है। तो हम लोग का जो सेशन आज का मोटिव क्या है, फर्स्ट मोटिव हमारा कि हाउ टू थिंक इनोवेटिव आइडिया, हम नए आइडिया कैसे सोचें, ये पहला टॉपिक है। इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू थिंक इनोवेटिव आइडिया,
हम कुछ पेटेंट के जो अवेलेबल कॉन्सेप्ट है, जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी बिजनेस जनरेट कर रहा है, उस पे डिस्कस करेंगे, जिसको आपके एकेडमिक टर्म में बोलते हैं केस स्टडी, ताकि आपको नए आइडिया सोचने में हेल्प मिले, वो हम स्टार्ट करेंगे। सर नेक्स्ट पेज पे जाएं आप। नेक्स्ट पेज, अगेन नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। या रुक जाइए। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाउ टू थिंक इनोवेटिव आइडिया। तो हम कुछ केस स्टडी से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि इन्वेंशन क्या है और कैसे लोगों ने किया है। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एक स्विच है, इलेक्ट्रिक स्विच है, जो किसी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट को ऑफ और ऑन करता है। ये कॉन्सेप्ट है ऑफ और ऑन का। ये कॉन्सेप्ट पेटेंटेड हुआ है, पेटेंट हुआ है बहुत साल पहले, क्योंकि केस स्टडी की बात कर रहे हैं। और आज इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखिए आप मार्केट में मोर देन 1000, पूरे विश्व में देखें तो मोर देन 1000 इंडस्ट्री है जो स्विच को डिजाइन करती है, अलग अलग कलर में, अलग अलग मार्केट प्राइस में, अलग अलग साइज का। और इंडस्ट्री में हर घर में यूटिलाइज हो रहा है। कितना बड़ा बिजनेस जनरेट हो रहा है छोटे से स्विच के कॉन्सेप्ट से। जो छोटा सा स्विच है 45 डिग्री का रोटेशन होता है, ऑन और ऑफ होता है। ये जो स्मॉल कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट पेटेंट होता है। उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को लेके इंडस्ट्री प्रोडक्शन करती है, कंपोनेंट बनाती है और अपना बिजनेस शुरू करती है। तो आप सोच सकते हैं स्विच एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इससे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इंडस्ट्री को और कितना एडवांटेज है सोसाइटी को। अब स्विच को ही लेके किसी साइंटिस्ट के, किसी स्टूडेंट के दिमाग में आया कि स्विच को और इनहेंस करते हैं, अगर हमें स्विच पे ही और एडवांस पेटेंट करना है तो क्या कोई तरीका है। तो पहले स्विच को जब ध्यान से स्टडी किया गया तो इसमें क्या पाया गया कि इसमें मैनुअली हमें जाके स्विच को प्रेस करना पड़ता है, मैनुअली एफर्ट लगाना पड़ता है। ऐसा कोई तरीका हो जिससे हम जहां बैठे वहीं से अपने लाइट को ऑफ और ऑन कर सके, एसी को ऑफ ऑन कर सके। तो ऑटोमेटिक कट ऑफ ऑन का एक मोबाइल ऐप आ गया, जिसके थ्रू हम अपने मोबाइल के ऐप से ही, किसी भी स्मार्ट मोबाइल ऐप्स रहेगा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट को अगर कनेक्ट किए हो इस प्रोसेस से, तो आप मोबाइल से ऑफ और ऑन कर सकते हैं। तो एक नया पेटेंट स्विच को लेके आया कि मैन्युअली हम नहीं प्रेस करेंगे, थ्रू मोबाइल ऐप प्रेस कर सकते हैं। दूसरे पेटेंट जब हुए तो साइंटिस्ट और स्टूडेंट और रिसर्चर्स लोग सोचे कि क्या इसके आगे और भी पेटेंट हो सकता है, क्योंकि अगर मोबाइल से हमें ऑफ और ऑन नहीं करना है या बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है वहां पे कुछ ऐसा सिस्टम लगाएं। तो थर्ड आपका फिर पेटेंट हुआ ऑटोमेटिक स्विच ऑफ ऑन हो जाता है। जैसे एक बहुत बड़ा हॉल है, वहां पे मीटिंग चल रहा है, मीटिंग के हॉल के फ्रंट साइड में लोग हैं, बैक साइड में कोई नहीं है, तो वहां पे अनवांटेड लाइट जलती है। तो एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने रिसर्च किया है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम, की ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, उसके हिसाब से लाइट अपना डिसीजन लेता है हमें ऑफ रहना है या ऑन रहना है। इसका एडवांटेज आपको व्हीकल पार्किंग जो हमारा होता है वहां पे बहुत एप्लीकेशन है। जैसे व्हीकल जाती है लाइट ऑन होती रहती है, व्हीकल आप पार्क करके वापस निकलते हैं तो लाइट ऑफ हो जाती है। तो स्विच जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, जो बल्ब लगे हुए हैं, CFL लगे हुए हैं, वो ऑटोमेटिक डिसीजन लेता है। इफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मींस लाइट ऑन और होगा, और ऑब्जेक्ट आपका वहां से मूवमेंट स्टॉप हो गया तो लाइट ऑफ हो जाएगा। अब ये पेटेंट की जर्नी है स्विच में कि एक कॉन्सेप्ट को उठा के उसमें डिसएडवांटेज फाइंड आउट किया गया, फिर दूसरा पेटेंट किया गया, फिर उसमें डिसएडवांटेज फाइंड आउट किया गया, तीसरा पेटेंट किया गया। लेकिन पहले पेटेंट की इंपॉर्टेंस नहीं गई। अभी हर घर में पहला पेटेंट लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है। कुछ स्मार्ट घरों में मोबाइल के थ्रू करते हैं, वो डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी के। अभी इंडिया में ग्रोथ का लेवल जो है उतना नहीं, हर घर में हम ऑटोमेटिक लाइट का कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड कर सकते, बट ये रिसर्च का एक डोमेन है कि लोग धीरे धीरे इसको एडॉप्ट करेंगे और इन फ्यूचर वो मार्केट में एक बिजनेस जनरेट करेगा। सेकंड और थर्ड जो भी मार्केट में बिजनेस जनरेट कर रहा है, फर्स्ट की कंपेयर में बहुत कम जनरेट कर रहा है, बट इन फ्यूचर ये जिसका कॉन्सेप्ट होगा उसको फाइनेंशियली बेनिफिट होने वाला है। सर नेक्स्ट पेज। सेकंड आप देखिए एक और केस स्टडी के थ्रू अध्ययन करते हैं पेटेंट हाउ टू थिंक इनोवेटिव आइडिया।
उसका है कि आप मोबाइल में सिंगल स्विच, जो पहला मोबाइल बना था उसमें सिम लगता था, एक ही सिम लगता था। ये जो सिम है, सिम की प्रोसेसिंग, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, ये एक पेटेंटेड कॉन्सेप्ट है। सिंगल सिम, एक मोबाइल में सिंगल सिम लगता था और बातचीत करते थे। तो जब सिंगल सिम का मोबाइल मार्केट में आया, लोगों ने स्टडी किया कि हमें अगर डबल नंबर रखना है तो क्या पॉसिबल है। तो फिर सेकंड पेटेंट किया गया। फर्स्ट जो पेटेंट उसमें डिसएडवांटेज फाइंड किया गया, एक मोबाइल में मोर देन 1 नंबर अगर हमें स्टोर करना है तो पॉसिबल नहीं था। तो डुअल सिम का मोबाइल मार्केट में लॉन्च किया गया, मतलब डुअल सिम का कॉन्सेप्ट पेटेंट किया गया, रिसर्च किया गया और पेटेंट हुआ। तो अब डुअल सिम मार्केट में भी खूब रन हो रहा है। जब डुअल सिम का कॉन्सेप्ट आया तो डबल सिम को हम आइदर पैरेलली आइदर सीरियली अटैच करके हम प्रोसेस करते हैं, डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी, सब कंपनी अलग अलग है। अगर हम सिम की ही बात करें, देखिए अगर मोर देन 1000 इंडस्ट्री है जो इंडिया में आउट ऑफ इंडिया मोबाइल डेवलप करती है, उस मोबाइल से अगर सिम निकाल दिया जाए तो मोबाइल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। मेन उसका पार्ट जो है सिम है, सिंगल सिम, डबल सिम, ये कॉन्सेप्ट है, ये पेटेंटेड कॉन्सेप्ट है। किसी भी कंपनी के मोबाइल हो उसमें सिम लगाएं और अपना कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। अब जब डबल सिम का पेटेंट हुआ तो फिर लोगों का दिमाग में आ गया कि यार पेटेंट हो सकता है और इस पे इन्वेंशन किया जाएगा। 3rd सिम, 4th सिम, 12 सिम तक के पेटेंट हुए कि एक मोबाइल में हम 12 सिम लगा सकते हैं, मोर देन 12 सिम लगा सकते हैं। बट पॉपुलर जो हुआ, आप सभी लोगों को पता है, डुअल सिम का मोबाइल मार्केट में खूब पॉपुलर है, खूब चल रहा है। तो जिसका डुअल सिम का कॉन्सेप्ट होगा उसको खूब रॉयल्टी आ रही है, बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहा है। ट्रिपल सिम, 4 सिम बहुत स्लो या नहीं के बराबर है। सिंगल सिम का तो ऑलरेडी मैक्सिमम बिजनेस जनरेट कर चुका है। तो आप देख सकते हैं कि सिम्स, ये मोबाइल सिम को लेके इतने इन्वेंशन हुए, इतने पेटेंट हुए। अब ये इन्वेंशन या पेटेंट यहीं पे नहीं रुका। अब लोगों को लगा कि एक मोबाइल में हम 2 से अधिक, 3 से अधिक, 4 से अधिक सिम लगाते हैं तो मोबाइल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनल है वो चेंज करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट और इनबिल्ड किया जाए जिसमें एक ही सिम में, सिम एक ही लगे, उसमें हम मल्टीपल नंबर ऐड कर सके, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, थ्रू कोडिंग, थ्रू प्रोग्रामिंग। एक सिम लगाएंगे, उसमें 4 अगर मोबाइल नंबर आपके पास, एक आइडिया का है, एक टाटा का है, रिलायंस का है, सारे मोबाइल नंबर को उसी एक सिंगल सिम में प्रोग्रामिंग थ्रू इंस्टॉल्ड कर दें। जब हम कॉल करेंगे तो स्क्रीन पे आ जाएगा कि कौन से कंपनी वाले नंबर से फोन करना, उससे कर दिए। अब जब सिंगल सिम में मल्टीपल मोबाइल नंबर हैं, अलग अलग कंपनी के नंबर है, तो आपको बहुत डिसएडवांटेज मिल जाता है कि कैसे ऐसे रेंज में गए हैं जहां पे बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं है लेकिन आइडिया का नेटवर्क है। तो आप अपने मोबाइल में आइडिया वाले से फोन करेंगे क्योंकि आइडिया का नेटवर्क अच्छा पकड़ रहा है। किसी और जोन में गए तो आइडिया भी अच्छा नहीं है, बीएसएनएल भी अच्छा नहीं है, तो रिलायंस का सिम का नेटवर्क अच्छा, रिलायंस से कर सकते हैं। तो आपके पास अगर मोर देन 2, मोर देन 3, मोर देन 4 नंबर है तो हम एक ही सिम में इंस्टॉल करके थ्रू प्रोग्रामिंग इंस्टॉल कर दे और लगाते। ये नया इन्वेंशन है। आपको आने वाले 2023 से 24 में ऐसा मार्केट में मोबाइल और सिम नजर आएंगे जो ब्लैंक सिम होंगे। आपको प्रोग्रामिंग कंप्यूटर के थ्रू जाके उस ब्लैंक सिम में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर इंस्टॉल करा सकते हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट पेटेंट हो गया है। आने वाले 2023 से 24 में इस तरह का कॉन्सेप्ट का मोबाइल आपको मार्केट में नजर आएगा, सिम नजर आएगा कि जो आप ब्लैंक सिम में अपने मर्जी से नंबर इंस्टॉल करके प्रोसेस कर सकते हैं, अगर आपके पास पहले से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है तो। नहीं तो नया नंबर लेके आप अपने सिम में इंस्टॉल करा सकते हैं। तो इस जर्नी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो मोबाइल सिम पे कितने पेटेंट हुए आपको समझ में आ गया, और कितना बिजनेस जनरेट हुआ ये भी आपको समझ में आ रहा है। तो जिस पर्सन का ये कॉन्सेप्ट होगा, जिस पर्सन का ये आइडिया होगा, उसको कितना रॉयल्टी मिल रहा होगा, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा होगा, आप आइडिया लगा सकते हैं। क्योंकि अगर हम डुअल सिम का एग्जांपल लें तो डुअल सिम जिस पर्सन का, उसको 14 रुपए, 14 रुपीज पर मोबाइल उसको रॉयल्टी जाती है। तो आप समझ सकते हैं पूरे इंडिया में एक साल में कितना मोबाइल बिकता होगा जिसमें डुअल सिम होगा। मोबाइल की कास्ट कुछ भी हो, 14 रुपए उस पर्सन को चाहिए ही चाहिए। अगर हम कैलकुलेट करें कि पूरे इंडिया में साल भर में 1 करोड़ मोबाइल बिक रहे होंगे तो 1 करोड़ मल्टीप्लाई 14 रुपए, ये उसकी, उस पर्सन की जिसका आइडिया है उसका पर ईयर का इनकम हो जाएगा। मोबाइल का रेट कुछ भी हो, उसको 14 रुपए चाहिए एज पर कमिटमेंट। नेक्स्ट पेज सर।
सिमिलरली आप सभी लोगों के पास मोबाइल है, फिर वही हम केस स्टडी कर रहे हैं कि हाउ टू थिंक द इनोवेटिव आइडिया, वो सोचना मैं सिखा रहा हूं थ्रू एग्जांपल। मोबाइल में कैमरे लगे हुए हैं, हर मोबाइल की कैमरे की पिक्सल क्वालिटी अलग अलग होती है। 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, ये पेटेंटेड है। 2 मेगापिक्सल किसी का, कुछ मोबाइल में 2 मेगापिक्सल लगेगा। फिर और इंक्रीज किया गया, क्वालिटी या पिक्चर इंक्रीज करना है तो 4 मेगापिक्सल, फिर 8 मेगापिक्सल, ये भी पेटेंट। फिर 12 फ्रंट में, बैक में कुछ और, मतलब मोबाइल की प्रोसेसिंग, उसकी पिक्सल कैपेसिटी, उसकी रेजोल्यूशन, उसका इंटरनल एल्गोरिथम चेंज किया गया, देन पेटेंट हुआ। तो मोबाइल के कैमरे को देखेंगे तो मोर देन 7, मोर देन 8 पेटेंट हुए हैं। पॉपुलर मोबाइल है, जो सबसे महंगा मोबाइल है, उसमें कौन सा पिक्सल का कैमरा लगेगा वो कंपनी डिसाइड करता है। तो जो पिक्सल का कैमरा लगेगा, जिस पर्सन का कॉन्सेप्ट है वो, उसको रॉयल्टी जाती है, उससे परमिशन लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं मार्केट में कितनी मोबाइल है, हर कंपनी अलग अलग है। हर कंपनी अपने मोबाइल में कोई पिक्सल के कैमरे की कैपेसिटी इंक्रीज और डिक्रीज करता है ताकि मार्केट में उसका मोबाइल सेल हो सके। तो कैमरे की क्वालिटी के आधार पे भी लोग डिसीजन लेते हैं कि ये मोबाइल ठीक है, ये मोबाइल ठीक है। एग्जैक्टली वो मोबाइल का कैमरा अच्छा है, इस वजह से वो मोबाइल बिक रहा है, ऐसा होता है। इस डोमेन में भी सोच सकते हैं, कुछ लोगों ने मोबाइल के कैमरे को डुअल ट्रिपल बनाया, फ्रंट में भी दिखेगा, फ्रंट से भी फोटो खींचेगा, बैक से भी खींचेगा और रोटेट होता है 360 डिग्री, कि लेफ्ट में भी कोई खड़ा है तो लेफ्ट से भी खींचेगा, राइट में कोई खड़ा है तो राइट में खोलेगा। मतलब आप प्रेस करते हैं ऐप्स को तो कैमरा ऊपर आता है, फिर रोटेट होता है, जिस डायरेक्शन में खींचना है आपको उसी डायरेक्शन में खींच लीजिए, आपको मोबाइल रोटेट करने की जरूरत नहीं है, ये पेटेंट हुआ। फिर कैमरे के एक पर्टिकुलर हाइट तक जाने के बाद वो फ्रंट पिक्सल ज्यादा होता है, लो पिक्सल हाई होता है, इन सबों पे पेटेंट हुए। तो आप समझ सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि छोटा सा कॉन्सेप्ट जो पिक्चर की क्वालिटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, अलग अलग मोबाइल में लगते हैं, वो सारे पेटेंटेड स्मॉलेस्ट कॉन्सेप्ट हैं। और कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, कितना बिजनेस जनरेट कर रहा है, यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। नेक्स्ट पेज सर। सिमिलरली स्टेपलर, छोटा सा एग्जांपल आपके, हर ऑफिस के टेबल पे स्टेपलर होता है। आपको स्टेपलर नहीं बनाना है, स्टेपलर का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझने का प्रयास कीजिए। किसी मल्टीपल पिन को स्टेपल करने का कॉन्सेप्ट है। दिस कॉन्सेप्ट इज पेटेंटेड विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट का क्या नाम बना, स्टेपलर बना, कि स्टेपल करना है मोर देन 2 पेज, मोर देन 3 पेज, मोर देन 4 पेज। जब स्टेपलर नहीं था तो हमें पेज में पिन लगा के करना पड़ता था। तो स्टेपलर का मार्केट में देखेंगे अलग अलग कलर में, अलग अलग साइज का, अलग अलग, कोई छोटा कोई बड़ा, किसी में बड़ा पिन लगता है, किसी में छोटा पिन लगता है। वो पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया। कितना भी बड़ा स्टेपलर हो, कितना भी छोटा स्टेपलर हो, सभी स्टेपलर का एक ही काम है, मल्टीपल पिन को स्टेपल कर देना ताकि पेज स्कैटर्ड ना हो। तो दैट कॉन्सेप्ट इज पेटेंटेड। उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को लेकर लोगों ने मार्केट में बिजनेस जनरेट किया। स्टेपलर अपने अपने कंपनी के नाम से बना और मार्केट में सेल हो रहा है। नेक्स्ट पेज सर। सिमिलरली वापस आते हैं, अब व्हीकल पे चलते हैं हम लोग, मैकेनिकल डिपार्टमेंट की तरफ। आज से हम 20 to 40 ईयर बैक चले जाएं तो टायर और ट्यूब का कॉन्सेप्ट था। हमें अगर हवा को, एयर को फिल करना है तो पहले ट्यूब में एयर फिल करते हैं, उसके ऊपर कवर होता है टायर, वो प्रोसेस होता था, व्हीकल में लगता था। अगर उसमें किल इंसर्ट हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, हवा निकल जाता था, फिर पंचर ठीक कराना पड़ता था, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आती थी। तो जो ये ट्यूब और टायर का कॉन्सेप्ट था, ये पेटेंटेड कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को पेटेंट किया गया कि ऐसा प्रोसीजर जिसमें हमें एयर फिल कर सके, उसके ऊपर प्रोटेक्टेड प्लास्टिक की कवर लगे जिसे वो लंबे टाइम तक चल सके, ये पूरा प्रोसेस को पेटेंट किया गया। उस प्रोसेस को पेटेंट होने के बाद देखिए मार्केट में ट्यूब और टायर बनाने की कितनी इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग मार्केट प्राइस का ट्यूब और टायर डिजाइन करती है। कोई लोकल है, कोई ब्रांडेड है, कोई मोर ब्रांडेड है, कोई कॉस्टली है, कोई स्लो कॉस्टली है, सारा कुछ डेवलप हो रहा है। बट उन सबों का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही है, टू ग्रिप द एयर अंडर द सर्टेन एरिया। एक सर्टेन एरिया के अंदर हमें हवा को रोकना है ताकि हमारी व्हीकल इजिली मूव कर सके। तो पहले पेटेंट में अगर ध्यान से देखेंगे तो इसकी डिसएडवांटेज है। ट्यूब और टायर का जो कॉन्सेप्ट पेटेंटेड है, इसमें डिसएडवांटेज है कि अगर किल इंसर्ट हो जाता है तो वो पंचर हो जा रहा है, हवा निकल जा रहा है। तो फिर नेक्स्ट पेटेंट किया गया, ये सारा यूएस का पेटेंट है, इंटरनेशनल पेटेंट है। नेक्स्ट पेटेंट किया गया ट्यूबलेस टायर, मींस हवा को रोकने के लिए अब ट्यूब लगाने की जरूरत नहीं है, टायर ही खुद ऐसा मैन्युफैक्चर, ऐसा डिजाइन किया गया
कि टायर खुद एयर को रोक सकता है। एक नया इन्वेंशन आया, इसमें आजकल टाइम इंडिया में देख रहे हो मैक्सिमम बाइक में, व्हीकल में ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है। ये पंचर होता है तो कुछ टाइम लगता है हवा निकलने में, 12 घंटा 14 घंटा टाइम लगता है, तब तक गाड़ी या व्हीकल आपका अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी होती है। जब सुबह वापस आप ऑफिस की तरफ आते हैं, देखते हैं कि व्हीकल में हवा कम है, तो आप समझ जाते हैं पंचर है, फिर बनवा देते हैं। तो इसमें भी डिसएडवांटेज आई कि तुरंत तो हवा नहीं निकल रहा है, बट सर्टेन टाइम पीरियड के बाद हवा निकल जा रहा है। तो ऐसा हम क्या करें? तो नया इन्वेंशन आया, ऐसा इन्वेंशन कर दिया गया जो ट्यूबलेस टायर है, मतलब ट्यूबलेस की जगह एयरलेस किया गया, उसमें हवा भरने का कॉन्सेप्ट ही फिनिश्ड। तो जो थर्ड वाला फिगर देख रहा है, ये एयरलेस टायर है। पहले और दूसरे के कंपेयर में इसकी लाइफ ज्यादा है, इफिशियंट है, और ये पंचर होने की इसकी प्रॉब्लम्स फिनिश हो गई। तो एयरलेस टायर मार्केट में आ गया। आने वाले टाइम में, आने वाले 2024 से 25 में इंडिया में भी एयरलेस टायर व्हीकल में नजर आएंगे लगे हुए। बाहर के कंट्री में भी है, क्योंकि यूएस पेटेंट है, यूएस के पास राइट है इसका, तो धीरे धीरे इंडिया में आने में टाइम लगेगा। ये यूट्यूब लिंक है, आप एयरलेस टायर का, ट्यूबलेस टायर का पूरा कॉन्सेप्ट देखना चाहेंगे तो यूट्यूब लिंक अपने सर से लेके देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज सर। सिमिलरली अगर हम व्हीकल में ग्लास, जो विंडो की ग्लास ओपन और क्लोज होती है, अगर हम पहला पेटेंट देखें तो मैनुअली हमें करते थे, हैंडल घुमाना पड़ता था तो ग्लास ओपन और क्लोज होता है। फिर लोगों को लगा कि नहीं हमें कीपैड चाहिए, तो कीपैड बना देगा। अब की बटन प्रेस करते हैं तो आपका ग्लास अप एंड डाउन होता है, ये पेटेंट हुआ। फिर इसमें भी लगा कि नहीं बटन प्रेस करने में मैनुअली हो रहा है, हमें कुछ और एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, तो ये अगर इंटेलिजेंट कार विंडो आ गया, आपके हाथ के इशारों से ही वो ऊपर नीचे जाएगा। तो ये इन्वेंशन का वे देखिए कि कैसे रिसर्च हो रहा है। हर रिसर्च में कोई ना कोई कमी है, हर इन्वेंशन में कोई ना कोई कमी, हर पेटेंट में कोई ना कोई कमी है। उसको अगर इनहेंस करते हैं, देन फिर आप नया एक पेटेंट, नए पेटेंट की तरफ डाइवर्ट होते हैं। नेक्स्ट पेज सर। सिमिलरली पावर स्टीयरिंग है, देखिए ये भी है, पेटेंट का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है। सर वापस हमें सेकेंड पेज पे जाना है। कम टू द सेकेंड पेज, एक एग्जांपल सबको समझाएं। सेकेंड पेज, वो यूट्यूब चलाना, मैं आप सभी लोगों को एक वीडियो दिखा रहा हूं, ध्यान से वीडियो देखना है। उस यूट्यूब लिंक में मोर देन 1000 पेटेंट कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, जो कंट्री को मॉडर्न कंट्री बना रहा है। सर ये यूट्यूब लिंक को ओपन करें, सभी लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। मोर इनोवेटिव है, इसमें मोर देन 1000 पेटेंटेड कॉन्सेप्ट ऑलरेडी इनबिल्ट है। साउंड नहीं आ रहा है सर। ठीक है सर, चलने दीजिए। वहां पे मैसेज जो है वो ऑलरेडी रीडेबल है। ऑल द पार्टिसिपेंट रीड द मैसेज। जो स्क्रीन पे मैसेज आ रहा है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैसेज है, ध्यान से देखें।
Okay, I will share the link to all the students. ओके सर, थैंक यू। Yes, बाकी सभी some बच्चों को technical शेयर कर issues. दीजिएगा। या Okay, yes sir. सर, नेक्स्ट पेज पीपीटी पे जाए। तो आई थिंक सभी लोग वीडियो देख लेंगे ध्यान से, उसमें मोर देन 1000 पेटेंट के कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं जो आपको नए कॉन्सेप्ट सोचने में हेल्प करेगा और आप कुछ नया कॉन्सेप्ट सोच पाएंगे जो सोसाइटी के लिए, इंडस्ट्री के लिए यूजफुल होगा, प्रोडक्टिविटी होगा। सर उसी पेज पे जाएं, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट 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 पेज सर। या पहला सर, बैक पेज। हाँ सर, नेक्स्ट पेज या पेज नंबर 12। ओके सर, होल्ड। सभी लोग को देखो, पहला क्वेश्चंस का आंसर अपने मैंने दिया कि हाउ टू थिंक इनोवेटिव आइडिया। ये मैं आपको केस स्टडी से दिखाए कि कैसे लोगों ने इनोवेटिव आइडिया सोचा और उस आइडिया के आधार पे कैसे मार्केट में कंपोनेंट बन के मार्केट में बिजनेस जनरेट कर रहा है। इसी तरह से कुछ आप इनोवेटिव आइडिया सोचेंगे जो सोसाइटी के लिए यूजफुल होगा, इंडस्ट्री के लिए यूजफुल होगा, या इंडिविजुअल आपके घर के लिए यूजफुल होगा, मे बी वो पेटेंटेड हो सकता है। अब हम सेकेंड कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि जब अगर हमारे ब्रेन में इनोवेटिव आइडिया आ गया तो हमें लिखना पड़ेगा पेज पे, ताकि हम किसी को समझा सकें कि हमारे कॉन्सेप्ट, आपके जो पास इनोवेटिव आइडिया है वो क्या है और कैसे वर्क करेगा। तो ये सब एग्जाम्पल जो है यहाँ पे मैं देने जा रहा हूँ कि किसी के ब्रेन में जो इनोवेटिव आइडिया आया तो उन्होंने पेपर पे कैसे लिखा, ताकि लोगों को समझ में आ जाए, इंडस्ट्री को समझ में आ जाए कि कंपोनेंट बनाना क्या है और उसका सोसाइटी में एप्लीकेशंस क्या है, ये कंप्लीट डिजाइन कैसे होगा। तो ये आपको एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्मेट में, एक समरी के फॉर्मेट में लिखना है आप अपने आइडिया को। तो यहाँ पे एक आइडिया है, लिखा हुआ है। सिमरन मैडम, आप रीड करें आइडिया को। हियर मी सिमरन मैडम। यस सर। या आप रीड करें आइडिया को, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, इसमें कोई कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। पेटेंट या मैडम। WTPM system, wireless tire pressure monitoring system for motor vehicles. Wireless tire pressure monitoring system for motor vehicles, WTPMS, is a tire pressure monitoring system used in any type of the vehicle. This technology involves two parts, that is tire pressure of all the tire pressure, tire pressure monitoring system, and main board or display screen indicates status of all tire pressure and interconnected through wireless technology. Each tire pressure monitoring kit is a small kit consists of microcontroller, sound alarm, pressure sensor and battery. This small kit senses high and low air pressure inside the tire and informs to main circuit mounted on the display screen, because of which driver will come to know the air pressure status of every tire and can take appropriate action. Here sound alarm introduced in small kit to identify high pressure level if air inside the tire exceeds the defined level when sound alarm generated. Light blinking facility is provided on the display screen to show low air pressure status of any tire. ठीक है सिमरन मैडम, ओके हो गया मैडम, ओके। तो सभी लोग ने जो स्टेटमेंट ये लिखा गया है, इससे आपको ये समझ में आया है कि क्या कॉन्सेप्ट बनने वाला है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि सोसाइटी में जो व्हीकल है उसमें क्या प्रॉब्लम है कि आपकी स्कूटी हो, चाहे बाइक हो, चाहे 4 व्हीलर हो, आपके टायर में हवा कितना है इसको मेजर करने का कोई इक्विपमेंट नहीं बना है कि जो आपके डैशबोर्ड पे बता दे कि फ्रंट में इतना पाउंड एयर है, कम है या ज्यादा है, बैक में इतना पाउंड एयर है, कम है या ज्यादा है। क्योंकि हवा की एक सर्टेन डिफाइंड थ्रेशोल्ड सेट की जाती है कि इतना फ्रंट में होना चाहिए, 30 पाउंड फ्रंट में होना चाहिए और बैक में 28 पाउंड होना चाहिए। लेकिन कहीं कोई यूनिट नहीं बना, कोई किट नहीं बना जो डिस्प्ले कर सके। तो ये एक डिसएडवांटेज फाइंड आउट किया गया है। उसके बाद इसको
लिखा गया, तो इसका फाइनली आउटपुट आपको समझ में आ रहा है क्या बनेगा कि अब आने वाले 2 से 3 साल में ये ऑलरेडी पेटेंटेड है। आपको इन्फॉर्म कर दूं, आपको जान के हैरानी होगी, दिस कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेड बाय योर केसीसी स्टूडेंट। सो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इनोवेशन, कितना बड़ा रिवोल्यूशन आपके स्टूडेंट ने, केसीसी के स्टूडेंट ने इस फील्ड में कर रखा है। आने वाले 2023 और 24 के आसपास इस तरह की व्हीकल मार्केट में आएंगे जिसके डैशबोर्ड पे दिखेगा कि फ्रंट में कितना एयर है, बैक में कितना एयर है, हवा अगर कम है तो उसको इंडिकेट करेगा, हवा ज्यादा है तो भी उसको इंडिकेट करेगा कि आपका हवा ज्यादा या कम हो गया है, आप काइंडली रिफिल करें या फिल करें। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको लिखा गया। अब इस इंडस्ट्रीज पे काम करेंगे, प्रोटोटाइप बनाएंगे, टेस्टिंग करेंगे और मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो 3 to 5 ईयर 7 ईयर टाइम लगता है ये कंपोनेंट मार्केट में आने में। सर नेक्स्ट पेज। फिर वही एक कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी पेटेंटेड कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को सोचा गया तो लिखना कैसे है, क्योंकि आपको अब हम ये समझा रहे हैं कि आपके ब्रेन में कोई आइडिया आया तो आपको पेपर पे लिखना क्या है, तो ये ऐसे लिखना है। सिमरन मैडम फिर से रीड करें आप। Yes, sir. Patent title: iBrake Intelligent Brake Pad Indication System. Car brake pad status intelligent indication system gives the brake pad status in percentage and alert message, which indicates whether replacement of brake pad is needed or not. Car brake is used to slow down or stop vehicles so very time we need to use it after repeated use of car brake. Most of time car brake pad get damaged, so need to replace that. Traditionally, there is only way to check brake status is to manually to mechanic in service station. Most of time users are unaware about this brake pad status and mechanic charge more money under maintenance of car. So this car brake pad status indication system gives modern and new way of checking brake status. ओके सिमरन मैडम, ओके मैडम, स्टॉप। तो सभी लोग ध्यान से देखें, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा गया है कि एक इनोवेटिव आइडिया है जो कार की ब्रेक की स्टेटस को आपके डैशबोर्ड पे शो करेगा कि वो 90, अभी नया लगा होगा तो शो करता रहेगा 100% ग्रिपिंग है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा ब्रेक पैड की थिकनेस डिक्रीज होगी, ब्रेक लगते लगते तो वो पतला होता चला जाएगा, तो उसकी परसेंटेज डिक्रीज होती रहेगी। 95, 90, 80, 85 ऐसे डिक्रीज होता रहेगा। और उसके वजह से ब्रेक पैड की कार के ब्रेक की स्टेटस, ग्रिपिंग कैपेसिटी, ग्रिप करने की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगी। ये हमें डैशबोर्ड पे अब दिखेगा। ये ऐसा पेटेंट किया गया है। जब ये पेटेंट पब्लिश हुआ, ये एक इनोवेशन है, ये एक पेटेंट ऑलरेडी पेटेंटेड है 2017 का। ये जब पेटेंट पब्लिश हुआ तो इस पेटेंट में एक डिसएडवांटेज फाइंड आउट की गई। और आपको मैं अपडेट कर दूं कि जो एक इस पेटेंट में डिसएडवांटेज फाइंड किया गया है, उसका जो पेटेंट हुआ है आपके केसीसी स्टूडेंट के द्वारा ही वो फाइल किया गया है। केसीसी की स्टूडेंट ने ही किया है वो डिसएडवांटेज फाइंड आउट करके। तो आप समझ सकते हैं कि आप लोग के बीच में कितने इनोवेटिव और इंटेलिजेंट स्टूडेंट अवेलेबल हैं, सीनियर टू सीनियर। तो आप सभी लोग उस डायरेक्शन में सोच सकते हैं, कर सकते हैं। अब ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को देखें तो इसमें कहा गया है कि ब्रेक पैड की स्टेटस को हम डैशबोर्ड पे डिस्प्ले करेंगे कि उसकी क्या परसेंटेज है, और 33% जैसे होगा तो एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि काइंडली रिप्लेस द ब्रेक पैड, रिप्लेस द ब्रेक पैड। दैट इज द इन्वेंशन। छोटा सा इन्वेंशन है जो आपके ब्रेक पैड की स्टेटस को शो करता है। इसमें क्या डिसएडवांटेज है? वी आर इंडियन, हम सभी लोग इंडियन, आप सभी लोगों को पता है कि मैसेज आएगा कि रिप्लेस द ब्रेक पैड, फिर भी ड्राइवर ब्रेक नहीं रिप्लेस करेगा, चलाता रहेगा। तो ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन अनअवेयर हो रहा है, पालन नहीं हो रहा है। तो दूसरा ये एक डिसएडवांटेज है। ऐसा कुछ करें कि ड्राइवर मजबूर होकर ब्रेक पैड को रिप्लेस कराए या कार मालिक मजबूर होकर ब्रेक पैड को रिप्लेस कराए। तो सेकंड जो पेटेंट किया गया, इसी पेटेंट को बेस में रख के कि जैसे ही पॉपअप मैसेज आएगा कि काइंडली रिप्लेस द ब्रेक पैड, और ड्राइवर अगर नहीं रिप्लेस कर रहा है तो उस टाइम से 50 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद गाड़ी की स्पीड लाकर
एक्टिव हो जाएगी, मींस अब आपकी व्हीकल 50 किलोमीटर पर आवर से ऊपर स्पीड पे जाएगी ही नहीं, तो गाड़ी के एक्सीडेंट होने का चांसेस खत्म हो गया क्योंकि ब्रेक आपका काम नहीं कर रहा है। दूसरा पेटेंट किया गया, ये जब सेकेंड वाला पेटेंट पब्लिश हुआ है जिसमें ये इन्वेंशन किया गया था कि अगर ब्रेक रिप्लेस नहीं करेंगे आप तो नेक्स्ट 50 किलोमीटर चलने के बाद आपकी व्हीकल की ऑटो स्पीड ब्लॉकर एक्टिव हो जाएगा और आपकी व्हीकल 50 किलोमीटर पर आवर से हाई स्पीड नहीं जाएगी। इसमें भी क्या डिसएडवांटेज है, अगर ड्राइवर 50 से नीचे ही गाड़ी चलाना चाहता है तो नहीं ब्रेक पैड चेंज करेगा, चला रहा है, ऐसा कुछ करे कि वो मजबूर हो जाए ब्रेक पैड चेंज करने के लिए, तो ये दूसरे पेटेंट में कमी निकाले गए। फिर थर्ड पेटेंट किया गया, इसी को सीरीज बोलते पेटेंट, कि फर्स्ट पेटेंट में डिसएडवांटेज फाइंड आउट किया है, सेकंड पेटेंट किया, इसमें डिसएडवांटेज फाइंड आउट किया गया, थर्ड पेटेंट क्या किया गया, अगर ड्राइवर को ये इंडिकेशन दे दिया गया कि ब्रेक पैड रिप्लेस करे, 50 किलोमीटर चलाया फिर भी ब्रेक पैड नहीं रिप्लेस कर रहा है, तो उसकी कार की स्पीड ऑटोमेटिक 50 के नीचे हो गई, वो 50 के नीचे ही कार चला रहा है, तो जिस टाइम ये मैसेज आएगा उस टाइम से नेक्स्ट 50 किलोमीटर चलने के बाद अगर ड्राइवर ब्रेक पैड रिप्लेस नहीं करता है तो आरटीओ ऑफिस और कार के ऑनर को वो किट नोटिफिकेशन दे देगा कि इस व्हीकल की ब्रेक पैड खराब हो गई है, ऑटो स्पीड लॉकर में ऑटोमेटिक व्हीकल चल रही है, फिर भी ड्राइवर ब्रेक पैड रिप्लेस नहीं कर रहा है। नोटिफाई आरटीओ ऑफिस गया और ऑनर को गया तो कोई ना अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे और व्हीकल को वर्कशॉप पे ले जाके ब्रेक पैड रिप्लेस कराएंगे। थर्ड पेटेंट हुआ, जब ब्रेक पैड रिप्लेस हो जाएगा तो आरटीओ ऑफिस और ऑनर को ये नोटिफिकेशन चला जाएगा कि व्हीकल इज अंडर योर कंट्रोल एंड ब्रेक पैड इज रिप्लेस्ड। तो आप आगे भी इसके सोच सकते हैं, और अगर डिसएडवांटेज है तो क्योंकि ये एक हिस्ट्री है, फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, ऐसे पेटेंट किया गया, और फर्स्ट सेकंड पेटेंट आपके ग्रुप का पेटेंट है, केसीसी स्टूडेंट का पेटेंट है, तो सोच सकते हैं कितना इनोवेटिव और कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट आने वाले टाइम में व्हीकल में लगा हुआ नजर आएगा, और कितना सिक्योर और सेफ जर्निंग आपकी होगी ब्रेक पैड के वजह से, ब्रेक के वजह से कोई एक्सीडेंट और किसी तरह का कोई वो नहीं होगी। नेक्स्ट पेज सर। नेक्स्ट पेज, या Simran madam, again read. Yes, sir. Patent title DPS printer, dual printer system to reuse waste paper and printed text ink. The field of invention describes reutilization of printing medium and print media in the printer mechanism. This dual printing system used to recycle the printing medium with the help of eraser toner, heating producer and white toner. Print media, that is printer ink, black, also reutilized by using adsorption method during heating procedure. This mechanism helped the reutilize the wasted printing page, which is used in various levels in this society, from school, college printer up to topmost printing press. This dual printing mechanism involves 3 procedures. First procedure involved eraser toner, which erases the image or text by rubbing waste pages with erasable medium. Second portion involved coloring of the substrate by applying temperature, hot air over it, and third portion involved coloring of the printing medium by spreading white ink spray over the waste page. These procedures are applied over the waste page according to sensor and scanner direction. When input sheet or waste paper sheet inserted in the printer initially checked up by graphite PZR sensor to identify pencil text or image. If it finds pencil text, then erasable toner gets activated. Upon मैडम ओके मैडम, तो सभी लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी एक इन्वेंशन छुपा हुआ है, कॉन्सेप्ट लिखा गया है, जो स्टूडेंट के ब्रेन में आया कि ये ऐसे होना चाहिए, तो आप सभी लोग ध्यान से अगर इसको समझने का प्रयास करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, जो आपके ऑफिस में प्रिंटर रखा हुआ है, पेज आप लगाते हैं तो प्रिंट कर देता है, प्रिंटिंग प्रोसेस कंप्लीट, पेज जो प्रिंट हुआ उसके इंफॉर्मेशन को हमने अगर पढ़ लिया हो गया, उसके बाद वो
हम रख देते हैं वो हमारे पेज किसी काम का नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो थी रीड हो गई। अगर उस पेज पे हमें रिसाइकिल करना है, उस पेज को रिसाइकिल करना है, फिर से प्रिंटिंग के लिए नया पेज बनाना है, तो उस पेज को फिर कंपनी में भेजना है, फिर वो प्रोसेस होगा, नया पेज बन के आएगा। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरा है कि उस पेज को एक ऐसा प्रिंटर बनाया जा रहा है जिसमें प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, मतलब जो आपका टेक्स्ट प्रिंट पेज है, जो वेस्ट पेज है, उसको लगाएंगे तो ये वाला प्रिंटर क्या करेगा, जो पेज पे टेक्स्ट प्रिंट है उसको रिमूव कर देगा और नया टेक्स्ट प्रिंट कर देगा। दिस इज द टेक्नोलॉजी। तो कैसे रिमूव करेगा, कैसे नया प्रिंट प्रेस करेगा, सारा कुछ लिखा गया है कि जो हमारा टोनर है वो पहले हॉट एयर स्पेसिफिक एक एक करेक्टर पे पेस्ट करेगा, ताकि वो करेक्टर क्या हो जाए, पिक्सल जो हॉट हो जाए, उसके बाद उसको अब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा। अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद वो पेज कुछ एब्स्ट्रैक्ट होगा तो कुछ ब्लैक कहीं नॉन ब्लैक दिखेगा, तो थॉट टोनर क्या करे, उस पे व्हाइट कलर का स्प्रे कर दे रहा है, तो पूरा पेज क्या हो गया, व्हाइट हो गया। इस पूरे प्रोसेस का जो एक्सपेंसेस आ रहा है वो 13 पैसे आता है ये पूरा प्रोसेस करने में, और टाइम वही, जितना पेज लगाएंगे पेज निकलेगा, मतलब विद इन 2 to 3 सेकेंड में वो पेज एक बार फिर से व्हाइट हो गया। इस पूरे प्रोसीजर में जो इंक लगा, व्हाइट कलर की स्प्रे लगी, वो 13 पैसे का लगा। और नॉर्मली A4 साइज का एक पेज जो होता है वो 20 पैसे to 25 पैसे होता है, लगभग 5 to 6 पैसे भी बचा और आपका पेज रिसाइकिल हो गया। तो अगर पेज अच्छी क्वालिटी का है, थिकनेस अच्छी है, तो हम कई बार पेज को रिसाइकिल कर सकते हैं। तो इस तरह का प्रिंटर आपको आने वाले 2024 और 25 में इंडिया में नजर आएंगे कि हम पेज को रिसाइकिल कर सकें। दैट इज ऑलरेडी पेटेंटेड कॉन्सेप्ट है, रिवोल्यूशन में है, डेवलप किया जा रहा है, आने वाले टाइम में मार्केट में आपको नजर आएगा। बहुत बड़ा नहीं है, सेम जैसा प्रिंटर है आपके टेबल पे वैसा ही होगा, थोड़ा सा उसका 350 से 1250 रुपए उसकी कास्ट इंक्रीज हो रही है। जो प्रिंटर 4000 में मिल रहा होगा वो 5000 के आसपास में आएगा। वो डुअल वर्क करेगा, रिसाइकिलिंग प्रोसेस कर देगा, पेज को रिसाइकिल रिप्रिंटेबल बना देगा। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। तो आप सभी लोगों को दूसरे क्वेश्चंस का मैं जवाब दे दिया कि अगर आपके ब्रेन में कोई इनोवेटिव आइडिया आ रहा है तो उसको पेपर पे लिखना कैसे है। ये लिख के अगर हमें आप देते हैं, इसकी पेटेंटेबिलिटी चेक होती है कि ये कॉन्सेप्ट पेटेंटेबल है कि नहीं। तो हम थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं, आपको हम देते रहेंगे। नेक्स्ट पेज सर। या अब ऐसे बहुत से एग्जांपल है, देते रहेंगे तो हम आगे चलते हैं कि आपको ये आप समझ में आ गया स्टेप नंबर 2 कि अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया आ गया है तो उसको पेज पे लिख के वापस देते हैं हमको, तो हम उस कॉन्सेप्ट को, उस आपके ड्राफ्ट को चेक करते हैं अंडर द पेटेंट ऑफिस गाइडेंस कि वो आपका कॉन्सेप्ट पेटेंटेबल है कि नहीं है। अगर पेटेंटेबल होगा तो पूरा ड्राफ्टिंग किया जाएगा। लगभग वो एक पेज का जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उस इंफॉर्मेशन के आधार पे लगभग 30 to 40 पेज की डॉक्यूमेंट बनाई जाती है, जिसको बोलते हैं हम लोग ड्राफ्टिंग। उस डॉक्यूमेंट को कोई भी इंडस्ट्री रीड करके जो आपने बोला है कि ऐसा प्रिंटर बनना चाहिए वैसा प्रिंटर बना देगी। दैट्स द कॉन्सेप्ट। तो ये सेकेंड प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो आप सभी स्टूडेंट या जो भी टीचर्स प्रोफेसर्स हैं, अगर कि कोई भी आइडिया आपके पास आए तो पहले उसको लिखना है, फिर चेक करेंगे उसको कि वो आइडिया आपका पेटेंटेबल है कि नहीं। नॉर्मली आप गूगल पे या इस पे जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन वो 100% आप नहीं चेक कर पाएंगे। वो पेटेंट ऑफिस के पास टोटल पूरे विश्व का रिकॉर्ड होता है कि कौन सा कंसेप्ट पेटेंटेड है, कौन सा नहीं है, कौन सा ऑलरेडी पेटेंट हो चुका है, कौन सा ऑन प्रोसेस है, किस चीज का रिसर्च हो रहा है, सब उनके पास रिकॉर्ड होता है। वहां से वो मैप करके बता देते हैं कि ये टोटल कॉन्सेप्ट आपका नॉवल है या ऑलरेडी ये पेटेंटेड है। तो हम थर्ड जर्निंग पे चलते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट पेटेंटेड हो गया तो आगे चलते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट पेटेंट नहीं होता है, बहुत से अदर पैरामीटर है जो पेटेंट होता है। जैसे अगर हम कोविड-19 अभी पिछले 1 सालों से हम लोग झेल रहे हैं, देखिए नोज फिल्टर है। फर्स्ट जो फिगर देख रहे हैं आप, ये नोज फिल्टर है। ये हाथ में जो ये है, ये नोज में लगा लेते हैं तो क्या करता है, क्वालिफाइड और फिल्टर्ड एयर अंदर जाने देता है।
तो ये ऑलरेडी पेटेंटेड कंसेप्ट है। दिल्ली के किसी ग्रुप ने पेटेंट किया, लगभग 27 पेटेंट नोज फिल्टर के अलग अलग पैरामीटर, अलग अलग कैपेसिटी, अलग अलग मार्केट प्राइस से कॉन्सेप्ट हो रहा है। इस नोज फिल्टर का केवल और केवल एक ही कॉन्सेप्ट है, एयर को फिल करके, रिफ्रेश करके, फिल्टर करके अंदर जाने दे रहा है। तो ये भी एक पेटेंट कॉन्सेप्ट होगा। डिफरेंट आइडिया, डिफरेंट डोमेन में भी सोच सकते हैं आप, प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हैं आप। दूसरा देखिए, ये N95 आपका मास्क है, N95 मास्क पेटेंट है, और आप मार्केट में भी देखेंगे तो हर तरह की मास्क, वेरियस कैटेगरी के मार्क, अलग अलग कंपनी, अलग अलग साइज की, अलग अलग मार्केट प्राइस का मास्क बनाती है। सब पेटेंटेड कॉन्सेप्ट है। कुछ लोगों ने तो बिना पेटेंट का प्रोडक्शन शुरू कर दिया कि कितनी जरूरत थी, पेटेंट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बिक रहा है, कोई कॉपी करे करने देते हैं। बट N95 पेटेंटेड थे, N95 जैसा कोई मास्क नहीं बना सकता। उसके मास्क के कलर में, उसकी फिल्टरिंग प्रोसेस में, उसके प्राइस में सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो दूसरा पेटेंट, तीसरा पेटेंट, चौथा पेटेंट हो सकता है। थर्ड, यहाँ पे देखिए सिर्फ नोज पे लगता है, ये भी पेटेंटेड कॉन्सेप्ट है। तो आप एक ही कॉन्सेप्ट में अलग अलग पेटेंट हो सकते हैं, उसकी प्रोसेस, उसकी मैकेनिज्म, उसकी एल्गोरिथम, उसका इंटरनल आर्किटेक्चर जब चेंज होता है तो नया पेटेंट बनता है। नेक्स्ट पेज सर। अब हम थर्ड केस पे जाते हैं। अगर आपके ब्रेन में कोई पेटेंटेड आइडिया आ ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे आप? तो उसके लिए भी तरीका है। जो एग्जिस्टेंस पेटेंट है मार्केट में, जैसे ये प्रिंटर ऑलरेडी पेटेंटेड कॉन्सेप्ट है, स्कैनर ऑलरेडी पेटेंटेड कॉन्सेप्ट है, दोनों को कंबाइंड कर दीजिए तो डुअल प्रिंटर बन गया, तो ये पेटेंट हो जाएगा। इसी तरह से आप मार्केट में दो अलग, ये भी पेटेंट हो जाएगा, ऑलरेडी पेटेंट है आपको केस स्टडी। इसी तरह से मार्केट में आप देखें कि अलग अलग कोई 2 प्रोडक्ट, कोई 3 प्रोडक्ट, कोई 4 प्रोडक्ट जो ऑलरेडी पेटेंटेड है, अगर इस 2 को मिलाते हैं कुछ नया बनता है, 3 को मिलाते हैं कुछ नया बनता है, 4 को मिलाएंगे कुछ नया बनेगा। वो जो नया बन रहा है अगर वो सोसाइटी के लिए यूजफुल है, इंडस्ट्री के लिए यूजफुल है, तो वो कॉन्सेप्ट आपका पेटेंट हो जाएगा। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं, नया कॉन्सेप्ट अगर ब्रेन में आपके नहीं आ रहा है तो। नेक्स्ट पेज सर। इसी तरह से देखिए, डोर लॉकर ये पेटेंटेड है, बायोमेट्रिक स्कैनर पेटेंटेड है, दोनों को कंबाइन करके बायोमेट्रिक डोर लॉकर बनाया गया। ये 2 कॉन्सेप्ट को इनबिल्ड कर दिया गया, ऑलरेडी पेटेंट है। नेक्स्ट पेज सर। अब प्रोसेस पेटेंट भी होता है। ये तो हो गया कि मैकेनिज्म पेटेंट, प्रोसेस पेटेंट भी होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैगी मसाला, मैगी मसाला बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट कितनी परसेंटेज मिक्स है, ये प्रोसेस किया गया है। उसके बाद पाउडर के रूप में कन्वर्ट करके पैकेट में कन्वर्ट कर दिया गया मैगी मसाला के नाम से। मैगी मसाला का कॉन्सेप्ट पेटेंटेड है। मैगी मसाला जैसा मसाला कोई और कंपनी नहीं बना सकती, उसका इंग्रेडिएंट अलग करना पड़ेगा। तो उसका मतलब क्या होगा कि उसका टेस्ट अलग हो जाएगा, उसकी मार्केट में रिक्वायरमेंट अलग हो जाएगी। जैसे MDH ये ऑलरेडी पेटेंटेड है, मैगी मसाला पेटेंटेड है। इसी तरह से MDH और मैगी मसाला को लेके देखेंगे तो दोनों मसाला है, लेकिन दोनों के इंग्रेडिएंट में चेंजेस, दोनों के टेस्ट में चेंजेस है। दोनों से कोई चीज बनाएंगे तो डेफिनेटली टेस्ट चेंज होगा। तो आप प्रोसेस पेटेंट भी कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक प्रोसेस को, मिक्सिंग को अलग अलग तरीके से करके कर सकते हैं। आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो जितनी मेडिसिन है, हर मेडिसिन का अलग अलग काम है, हर मेडिसिन पेटेंटेड है। कौन सा मेडिसिन किस पर्पज के लिए बना है, उसमें विटामिन कितना है, मिनरल्स कितना है, प्रोटीन्स कितना, सब प्री डिफाइंड होता है और किस वर्क के लिए है वो। तो मेडिसिन के फील्ड में जाते हैं, अगर कुछ ऐसा मेडिसिन बनाते हैं जो किसी पर्टिकुलर बीमारी का सोल्यूशन देता है, तो उसमें कौन सी चीज कितनी परसेंट है, कौन सा इंग्रेडिएंट, कौन सा विटामिन, कितना परसेंटेज मिक्स किया है, उसका प्रोसेस क्या है, मैन्युफैक्चर कैसे होगा, वो पूरा प्रोसेस लिखना होगा तो वो पेटेंट हो जाएगा। जैसे अब आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, ये आपका क्या है, कढ़ाई पनीर है। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए भी प्रोसेस है कि पनीर कितना होना चाहिए, मसाला कितना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कौन सा इक्विपमेंट कितने मात्रा में होनी चाहिए, टेस्ट किस तरह होना चाहिए, कितने देर तक पकाएंगे, ये पूरा प्रोसेस लिखना है। तो ये अगर आपका एक यूनिक टेस्ट आता है जो मार्केट में लोग लाइक करते हैं, तो आपका नाम उसका रखेंगे तो वो पेटेंट हो जाएगा। तो वैसा कोई और नहीं कॉपी कर सकता। उस प्रोसेस को कोई फॉलो करेगा तो वही टेस्ट का इक्विपमेंट बनेगा, वही टेस्ट का फूड्स बनेगा, वही टेस्ट की वेजिटेबल बनेगी, वही टेस्ट की सब्जी बनेगी। तो प्रोसेस पेटेंट भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट पेज सर। सिमिलरली देखिए, चाय है, चाय भी बनाने का एक प्रोसेस है। मसाला चाय मार्केट में फेमस है क्योंकि ये पेटेंटेड है। मसाला चाय बनाने का प्रोसेस है कि ये चीज इतना, ये चीज इतना, इतना टेम्परेचर, इतनी मात्रा में शुगर, इतनी मात्रा में चाय, इतनी मात्रा में मसाला मिलेगा तो ये टेस्ट आएगा।
घर पे आप चाय बनाते हैं तो मसाला चाय नहीं है, नॉर्मल चाय है, उसका भी प्रोसीजर होता है। तो मार्केट में अलग अलग नाम से जो चाय बिकते हैं, जो नाम से चाय बिक रहे हैं, जो घर बनाते हैं उसका कोई नाम नहीं, उसका सिर्फ चाय नाम है। लेकिन मार्केट में जिस नाम से कोई चाय बिक रहा है वो पेटेंटेड चाय है। इसी तरह से देखिए कोविड-19 वाज हैंड सैनिटाइजर, किसी में 98% एल्कोहल, किसी में 95% एल्कोहल, सब ये पेटेंटेड कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, ये आपका फेविक्विक ऑलरेडी पेटेंटेड कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट पेज सर। अब हम अगला आते हैं कि ये आपके ब्रेन में अब ये आने लगेगा कि हम इनोवेटिव आइडिया कैसे सोचे, उसको पेज में कैसे लिखें, वो सारा कुछ कंप्लीट कर दिए हैं। अब उस आपको जो पेज में लिखना है, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है हमें, वो 1 पेज का हो सकता है, 1.5 पेज का हो सकता है, 2 पेज का हो सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किए हैं। किसी स्टूडेंट टीचर ने ये इंफॉर्मेशन, पहला जो डेटा है ये दिया है, उस डेटा को ड्राफ्टिंग में कैसे कन्वर्ट किया गया जो पेटेंट ऑफिस में जमा होगा, इस डेटा से फिगर कैसे बनाया गया जो पेटेंट ऑफिस जमा होगा। तो ये आपको है, पीडीएफ है सर, शेयर कर देंगे, एक एग्जांपल के थ्रू दिखा रहे हैं। ये सर डेटा 1 ओपन करें तो क्लिक करें, ओपन हो रहा है क्या? हाइपर लिंक क्लिक करें डेटा पे, डेटा पे क्लिक करें, ओपन हो रहा। यस सर, ओपन हो रहा है सर। यस सर। हाँ, ओपन करके दिखाई सबको। ये इंफॉर्मेशन है जो आप लोग देते हैं हमें कि इसको पेटेंट करना है, 2 से 3 पेज की इंफॉर्मेशन होती है, वो आप देखिए कि कैसे दिया जाता है। अब देखिए जो इंफॉर्मेशन स्टूडेंट या टीचर या प्रोफेसर या साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया कि हमारा कॉन्सेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है और टेंटेटिव टाइटल कोई लिख देते हैं। अगला पेज है ये, नेक्स्ट पेज सर, इसको ड्रॉल कीजिए। एब्स्ट्रैक्ट 1 पेज 1.5 पेज में दे सकते हैं। रिलेटेड वर्क फाइंड आउट कर लेंगे कि आपको नेट पे ये रिलेटेड वर्क है। नेक्स्ट पेज, फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, 2-3 पॉइंट में ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं कि आपका सोसाइटी की कौन से ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट पेज सर। फिर एक्सपेक्टेड आउटकम और प्रोजेक्ट आउटकम, ऐसा कुछ भी जो भी आपको इंफॉर्मेशन समझ में आ रहा है वो प्रोवाइड कर दें। क्लोज करें सर। ये डेटा पहले क्या, जो हमें ये डेटा, इस तरह का डेटा देंगे, ये चेक किया जाएगा पेटेंटेबल, फिर इसकी ड्राफ्टिंग बनेगी। तो फॉर्म 2 ओपन करें सर, उस पेज पे जाके इस डेटा को पेटेंटेबिलिटी चेक की जाती है। अगर पेटेंटेबल है तो पेटेंट ऑफिस में डॉक्यूमेंट जो जमा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्राफ्टिंग, फॉर्म 2 बनाया जाता है। पेज नंबर 14-15 पे जाएं। ज्यादा आगे चले आए सर, पीछे थोड़ा बैक, और 1 पेज पीछे, 1 पेज और पीछे, 1 पेज और। हाँ, अब आगे ये धीरे धीरे 1 by 1। ओके ओके ओके, या होल्ड। अब ये ड्राफ्टिंग फॉर्म 2 है, बैक साइड सर। फॉर्म 2, ये ड्राफ्टिंग फॉर्म 2, ये वाला ओपन करके दिखाएं। इसको बोलते हैं कंप्लीट ड्राफ्टिंग। ऐसा ड्राफ्टिंग बनाया जाएगा, पेटेंट प्रोफेशनल आपको आपके डेटा को कन्वर्ट करेगा। इसको ओपन करके सर दिखाएं। So some error is there sir. ओके, कोई बात नहीं। तो ये ड्राफ्टिंग शेयर कर दीजिएगा, हमको पता चल जाएगा कि ड्राफ्टिंग क्या है। नेक्स्ट पेज। इसी तरह से जो भी आप इंफॉर्मेशन 1 से 2 पेज का देते हैं उसकी कंप्लीट ड्राफ्टिंग बनती है, तो आपका पेटेंट फाइल हो जाता है। पेटेंट फाइल होने के डेट से 18 मंथ तक आपको आपके कॉन्सेप्ट का एक प्रोटोटाइप बनाना होता है कि आपका जो आपने पेपर में लिखा है उसका एग्जैक्टली मॉडल बनेगा कैसा। वो प्रोटोटाइप बनाने के लिए आपको 1.5 ईयर मिलती हैं, 1.5 साल मिलते हैं। उसको आपको अपने लैब में, अपने घर में टीचर्स से हेल्प लेके, ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प लेके प्रोटोटाइप बनाना है। वो प्रोटोटाइप बना लेते हैं तो उस प्रोटोटाइप की एग्जामिन होती है,
यहाँ पे हम एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 में प्रोटोटाइप के लिंक भेजे हुए हैं। सर से आप लोग लिंक लेके एक बार देख लीजिएगा कि प्रोटोटाइप कैसे बनाते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने जो कॉन्सेप्ट सोचा है उसको हम प्रोटोटाइप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज सर। ओके, तो फाइनली आपका प्रोटोटाइप बन गया, पेटेंट फाइल हो गया आपके नाम से, आपने प्रोटोटाइप बना दिया। पेटेंट क्या होगा, कमर्शियलाइज होगा, मार्केट में सेल कर सकते हैं आप। तो कुछ अब एग्जांपल दे रहे हैं कि कैसे सेल करते हैं। आप अपने प्रोटोटाइप के यूट्यूब बनाते हैं और सोसाइटी में शेयर कर देते हैं, उसकी लाइक और शेयर की संख्या बढ़ने दीजिए, लोगों को पता चलेगा आपका कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरा तरीका है लोकल लेवल पे उसका प्रोडक्शन करके शुरू कर दे बेचना। तीसरा है रिलेटेड कंपनी, जो आपका कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड कंपनी का नाम सर्च कीजिए, वहां के सीईओ के एक लेटर लिखिए कि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट, इसका प्रोडक्शन हम बनाना चाहते हैं, आप हमें कोऑपरेट करें। या आपकी इंडस्ट्री, आपका रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इस कॉन्सेप्ट को बनाना चाहती है तो हमसे संपर्क कर सकता है। ये 3 स्टेप फॉलो करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट जो है कि वो पॉपुलर होता है, तो सेलेबल बन जाता है, सेल होने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ जो कॉन्सेप्ट, जो पेटेंट सेल हुए हैं मार्केट में, जैसे डुअल सिम लगभग 14 रुपए पर सिम उस ऑनर को जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम चिप है, ये 5.7 करोड़ का सेल हुआ है। डिजिटल सिग्नेचर नाम समझते हैं आप, ये भी देखो 5.78 करोड़ का मार्केट में सेल हुआ है जिस बंदे का था। पेन ड्राइव जो सभी के पास होता है, ये भी पेटेंटेड कॉन्सेप्ट है, जिस पर्सन का था उसने रॉयल्टी पे दे रखा है। मार्केट में न जाने कितनी कंपनी पेन ड्राइव बनाती है। N95 मास्क ऑलरेडी पेटेंटेड कॉन्सेप्ट है, सेल किया गया है जिसका है, उसके बाद कंपनी बना के मार्केट में सेल हो रहा है। इसी तरह से ढेर सारे कॉन्सेप्ट हैं जो बनाए गए हैं और मार्केट में सेल प्रोडक्शन होके बिक रहे हैं, और जिस पर्सन का उसने पैसा लेके उस कंपनी को दे दिया है कि आप प्रोडक्शन करें। नेक्स्ट पेज सर। ये बहुत सारे पेटेंट का कॉन्सेप्ट है जो पेटेंटेड है, आप रीड करेंगे तो इससे आइडिया लग जाएगा, टाइटल से ही आइडिया लग जाता है कि क्या इन्वेंशन है। नेक्स्ट पेज सर। नेक्स्ट पेज। सर नेक्स्ट पेज। Yes, sir. Just a second, sir. Yes. Bandwidth issues are there, sir. तो नॉर्मली 4th क्वेश्चन का जवाब हो गया कि आपका कॉन्सेप्ट पेटेंट हो गया, प्रोटोटाइप बन गया, आप उसको सेल करने के लिए प्रोटोटाइप बना के सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज सर। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट। 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 नेक्स्ट पेज। 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 अब सभी लोगों का सारा कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो गया है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, इस पूरे प्रोसेस में गवर्नमेंट कितनी फीस हमसे लेगी, हमारा कितना फीस लगेगा, या फिर पेटेंट का टोटल एक्सपेंसेस कितना है। तो मैं यहाँ पे एक हिंट दे रहा हूँ आपको, आपका जो कॉन्सेप्ट है उसकी पेटेंटेबिलिटी चेक करने का लगभग ये अमाउंट आता है। ड्राफ्टिंग करने का, आप सेल्फ ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, थोड़ा हिंट मिल जाएगा, हमें जरूरत पड़ेगी तो हम आपको गाइड कर देंगे, ड्राफ्टिंग बनवा के आपको दे देंगे। गवर्नमेंट फीस जो फाइलिंग की जाती है ये अमाउंट जाती है, 3rd नंबर पे है। आपका पेटेंट पब्लिश होता है, पब्लिक डोमेन में जाना है, उसका फीस लगता है। आपका पेटेंट एग्जामिनेशन है तो उसका फीस लगता है। तो टोटल फीस जो आती है लगभग 25,000 के आसपास आती है। और एक पेटेंट में 5 से 6 स्टूडेंट मिल जाए, 5 से 6 टीचर्स मिल जाए, ये 25,000 के इक्वली डिवाइड करके 5 से 6 लोग मिलकर उस पेटेंट के प्रोटोटाइप को डेवलप करें और पेटेंट अपने नाम से कर लें। पेटेंट में एक बंदे के नाम से है चाहे 5 लोगों के नाम से है, वो पेटेंट सभी के लिए इक्वल राइट्स प्रोवाइड करता है। अगर पेटेंट आपका 1 करोड़ में सेल हुआ और उसमें 5 लोग हैं तो 5 लोग को इक्वली अमाउंट मिलेगा, 1 करोड़ डिवाइड बाई 5। ऐसा नहीं है कि जो टॉप पे है उसको ज्यादा मिलेगा, जो बॉटम में है उसको कम मिलेगा। पेटेंट एक इंटेलेक्चुअल राइट है,
जैसे कोई जगह या कोई बिल्डिंग खरीदते हैं, 2 लोगों के नाम से है तो बिकेगा तो दोनों लोग सिग्नेचर करेंगे और दोनों लोग आधा आधा पैसा बांटेंगे। इसी तरह से पेटेंट है। पेटेंट का प्रोसीजर हो गया। नेक्स्ट पेज सर। तो ये अमाउंट की डिस्कशन हो गया है। नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे आपको हम कंप्लीट करते हैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, चारों स्टेप को रिपीट कर दिए हैं। पहला था हाउ टू इनोवेटिव आइडिया थिंक, इसका जवाब आपको मिल गया है। हाउ टू आइडिया योर चेक द पेटेंटेबल एंड ड्राफ्ट, ये भी जवाब आपको मिल गया। फिर हाउ टू डेवलप द प्रोटोटाइप, ये भी जवाब मिल गया है। हाउ टू कमर्शलाइज, ये भी जवाब दे दिए। सिर्फ आपको अब इनोवेटिव आइडिया सोचना है और उस थिंक को 1.5 पेज या 1.5 पेज में लिख देना है, फिर सर को दे देना है, सर के थ्रू हमारे पास आ जाएगा, उसकी पूरी ड्राफ्टिंग टेस्टिंग कर ली जाएगी। अगर पेटेंटेबल होगा तो आप लोगों के ग्रुप के नाम से, वो इंस्टीट्यूट के नाम से, या जो भी आप प्रोसेस चाह रहे हैं उस हिसाब से वो पेटेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सर पेटेंट से रिलेटेड बच्चों से क्वेश्चन आंसर का सेशन रख के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। अगर किसी को क्वेश्चन है तो जवाब दे दें हम। Yes, sure. Arko? Dear student, dear faculty, Yes, sir. if any question then ask me directly. अपना ऑडियो आप ऑन करें और क्वेश्चन पूछ लें। Yes, sir, definitely. I would like to ask a question, sir. So my question is, what are the factors that influences a project or a product to be patent or not? योर फाइनल ईयर का जो आपका प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को चेक करना पड़ता है कि आपका कॉन्सेप्ट नॉवल है कि नहीं। नॉवेल्टी होगा तो आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाएगा, यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करेगी कि यूनिवर्सिटी का पेटेंट से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन आपको अपने कॉन्सेप्ट को चेक कराना है कि आपका जो प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट है वो पेटेंटेबल है कि नहीं। उसके लिए आप अपना एब्स्ट्रैक्ट, आप अपना मेथड, अपना प्रोसेस अगर लिख के देते हैं तो वो पेटेंट ऑफिस से एक रिपोर्ट आ जाएगी, योर कॉन्सेप्ट इज पेटेंटेड आर नॉट। पेटेंट प्रोफेशनल उसको चेक करके आपको बता देंगे, देन अपने आप प्रोजेक्ट को पेटेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उस प्रोजेक्ट का कोई रिसर्च पेपर, कोई पब्लिकेशन पब्लिक डोमेन में पब्लिश नहीं हुआ ना होना चाहिए, अदरवाइज वो पेटेंट में नहीं कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एनीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Any question from attendee? Please text in a chat box. Okay, sir, I will share you all the questions if anyone asks. Okay, any student, if any question directly you can share the sir, तो क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, फिर 1 by 1 मैं आपको ऑडियो के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू आपको जवाब दे दूंगा, और यूट्यूब में लिंक देख लेंगे तो भी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो एनीवन आप क्वेश्चन अपने यहाँ रेज कर दे, उसका जवाब आपको थ्रू वीडियो पहुंच जाएगा। सर मीटिंग ये सेशन को कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन स्टूडेंट के जो होंगे हो सकता है यहाँ पे ना पूछ पा रहे हैं, तो हम उनका क्वेश्चन आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, उसका हम ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू उनके पास लिंक भेज देंगे, वो आप समझ लेंगे। Sir, one question from Adnan. If there is a famous technology, then how much innovation it needs for a new patent? विद एग्जांपल हम जैसे मैगी मसाला की बात कर ले, मैगी मसाला क्या है, पेटेंटेड, ये फेमस पेटेंटेड है। मैगी मसाला ने जो इंग्रेडिएंट मिक्स किया है, ठीक है, वो डिस्क्लोज नहीं किए हुए हैं। तो आप किसी भी पेटेंटेड कॉन्सेप्ट को उठा के उसके प्रोसेस को समझिए कि उसमें जो प्रोसेस है उसमें अगर चेंजेस कर सकते हैं आप, और चेंजेस करने के बाद कोई इनोवेटिव थिंग्स बन रहा है जो सोसाइटी उसको अलाउ करेगी, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी, देन यू मे बी गो टू द पेटेंटेड, राइट? ओके सर, थैंक यू। मतलब किसी भी पॉपुलर प्रोजेक्ट को आप, किसी भी पॉपुलर प्रोजेक्ट, किसी पे पॉपुलर कॉन्सेप्ट को उठा सकते हो, बट आपको कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट ऐड करना ही है उसमें, तभी वो पेटेंट में कन्वर्ट होगा। वो नया कॉन्सेप्ट पहले चेक होता है कि पेटेंटेबल है कि नहीं, वो हमारे थ्रू, सर के थ्रू चेक करा सकते हैं, देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Anyone? Okay, Arko, conclude the session. Arko?
Anyone? No. Okay. So thank you so much for your valuable points. The very informative session this is, and thank you, sir. Thank you so much, sir. ओके थैंक यू सर। एक काम कीजिएगा, ये Yes, sir. जितने ये अटेंडी हैं इनको जो यूट्यूब के लिंक है Yes, sir. वो देख शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। मैं 2-3 और यूट्यूब का लिंक भेजूंगा जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट मैंने खुद बोल के बताया है।